Assalamu alaikum everyone. Welcome to my class. How are you all? Hopefully you all will be fine and taking good care of yourself and your friends and family members. Students, today we are going to start unit number 6, direct and inverse variations, exercise 6.2. First of all, we will discuss about proportion. Four quantities A, B, C and D are said to be in a proportion if A ratio B is equals to C ratio D. It means the ratio of first to the second is equals to the ratio of third and fourth. Here proportion shows the equality of two ratios. Two ratios are A ratio B and C ratio D. In a proportion, the second and third elements are called means of a proportion and the first and the fourth elements are called extremes of a proportion. Here A and D are extremes of a proportion and B and C are means of a proportion. In A ratio B proportion C ratio D, product of means must be equals to product of extremes. Here extremes are A and D and means are B and C. If the second and third elements of a proportion have the same value such as A ratio B proportion B ratio C, then B is called the mean proportional. The fourth element of a proportion is known as the fourth proportional. For example, A ratio B proportion C ratio D. Here D is the fourth proportional. Okay, let's talk about direct proportion. A relation in which one quantity increases or decreases in the same proportion by increasing or decreasing the other quantity is called the direct proportion. ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ हो रही हो तो दूसरी भी इंक्रीज़ होती है और अगर एक डिक्रीज़ हो रही हो तो दूसरी भी उसी प्रोपोर्शन से डिक्रीज़ होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे आपके उतने ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम होंगे और बिल भी आपका उतना ज़्यादा ही आएगा। लेकिन अगर आप बिजली कम कंज्यूम करेंगे तो आपके यूनिट्स भी कम होंगे और आपका बिल भी कम आएगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रहा है। इनवर्स प्रोपोर्शन, a relation in which one quantity increases in the same proportion by decreasing the other quantity and vice versa is called inverse proportion. ऐसा रिलेशन जिसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी उसी प्रोपोर्शन से डिक्रीज़ होगी और अगर एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज़ हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन बोलेंगे। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर 10 बॉयज़ एक काम 4 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं तो अगर मैं नंबर ऑफ़ बॉयज़ इंक्रीज़ कर दूं तो ऑब्वियसली हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो जाएंगे। लाइक अगर मेरे पास 10 बॉयज़ हैं और मैं 4 डेज़ में उनसे काम करवा रही हूँ तो अगर मैं 10 के बजाय 20 बॉयज़ कर दूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो जाएंगे क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा हो जाएंगे और नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो जाएंगे, इसलिए काम जल्दी फिनिश हो जाएगा। This example shows the relation of inverse proportion. Today we are going to start exercise 6.2 question number 1. लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, A ratio B proportion C ratio D. Here proportion shows the equality of two ratios. The first ratio is A ratio B and the second ratio is C ratio D. In simple words, the equality of two ratios is called proportion. Here A and D are extremes of a proportion and B and C are means of a proportion. ठीक है, the terms of ratios can be written in fractional form, like A ratio B can be written as A over B and C ratio D can be written as C ratio D, C over D. And the symbol of proportion shows the equality of these two fractions. You know that product of means is equals to product of extremes. Here A multiply D must be equals to B multiply C.
इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है ये 6.2 में भी यूज़ होगा, तो आप सब बच्चों ने इसको लर्न करना है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज़ 13:3 इज़ इक्वल्स टू m/6। यहाँ पे हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का, वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमने बताना है 13:3 इज़ इक्वल्स टू m/6 में मीन्स क्या हैं और एक्सट्रीम्स क्या हैं, ठीक है। द सेंट्रल वैल्यूज़ आर कॉल्ड मीन्स ऑफ अ प्रोपोर्शन एंड द आउटर वैल्यूज़ ऑफ प्रोपोर्शन इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम्स ऑफ अ प्रोपोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अच्छा, हमने मीन्स का प्रोडक्ट लेना है, तो हमारे पास मीन क्या है 3 and m है, तो हम लिखेंगे 3 × m इज़ इक्वल्स टू, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में हम एक्सट्रीम्स की वैल्यूज़ लिखेंगे 13 × 6। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3m और यहाँ पे हो जाएगा 13 × 6 78। अब बोथ साइड्स जो हैं वो 3 के टेबल पे डिविजिबल हैं, तो हम दोनों साइड्स को 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3m by 3 78 by 3, ठीक है। 3 3 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 26 आ गया हमारे पास, ठीक है। द वैल्यू ऑफ m इज़ 26। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। ओके गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। m/5 इज़ इक्वल्स टू 3/10। अब यहाँ पे हमने बताना है इसमें मीन्स क्या हैं और एक्सट्रीम्स क्या हैं, ठीक है। द इनर बोथ वैल्यूज़ आर कॉल्ड मीन्स एंड द आउटर वैल्यूज़ आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स ऑफ अ प्रोपोर्शन। अब हमने फार्मूला लिखना है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन्स हमारे पास थे 5 × 3 और एक्सट्रीम्स में हमारे पास वैल्यूज़ थी m × 10। 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा 10m। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स जो हैं वो 5 के टेबल पे डिविजिबल हैं, तो हम 5 के टेबल पे डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इज़ इक्वल्स टू 2m। अब हमने यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके साथ जो भी वैल्यू होगी हम उसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। अब ये m इधर ही रहेगा और यहाँ पे 3 था और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 3 को 2 पे डिवाइड कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5। द वैल्यू ऑफ m इज़ 1.5। दिस इज़ द आंसर। अच्छा बच्चों, अब जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके सेम इसी मेथड से हैं, ठीक है। मैं आपको एक और डेसिमल वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ। रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स हैं वो आपने फिर खुद से उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। 0.21/6.3 इज़ इक्वल्स टू 0.06/m। अब उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, मीन्स और एक्सट्रीम्स बताए हैं हमने यहाँ पे और फार्मूला लिखा है, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मीन्स की वैल्यूज़ थी हमारे पास 6.3 मल्टीप्लाई 0.06 इज़ इक्वल्स टू, और एक्सट्रीम्स की वैल्यूज़ थी 0.21 × m। अब यहाँ पे तो आ गया हमारे पास 0.21 m और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 18 1 और ये 0। अब हमने डेसिमल प्लेस करना है, यहाँ से 2 वैल्यूज़ छोड़ेंगे और यहाँ से 1, कितनी हो जाएंगी 1 2 और 3 वैल्यूज़ को छोड़ के हमने डेसिमल प्लेस करना है 1 2 3, तो हमारे पास आया 0.378। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.378। अब हम m को इधर ही रहने देंगे और 0.378 को डिवाइड कर देंगे 0.21 पे। आपको पता है जो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो जब दूसरी साइड पे जाती है अपोजिट साइड पे तो वो डिवाइड हो जाती है। अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब मैं इसको लेफ़्ट साइड पे लेके गई हूँ तो ये डिवाइड हो गया है। अब हम इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। अच्छा, अब हम इन दोनों डेसिमल वैल्यूज़ को डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। ये 0 और पॉइंट जब ऊपर चला गया, ये वाला 0 पॉइंट और ये वाला 0 पॉइंट अब हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। 21 और 378 को डिवाइड कर लेते हैं। अब हम पहले हम 37 लेंगे, 21 1 21 हो गया, ठीक है। 6 और ये 1 और ये 8 नीचे आ गया। अगर मैं 21 को मल्टीप्लाई करूं 8 के साथ तो मैं भी मेरे पास 168 आ जाए। चेक कर लेते हैं हम, 8 1 8 8 2 16 168 आ गया, ठीक है। हमने 8 तक टेबल पढ़ा था, 168 आ गया, तो 0.18 जो है वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, m की वैल्यू आ गई है 0.18। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ m। दिस इज़ द आंसर। आई होप के सब बच्चों को क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने होमवर्क में करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।